welcome once again. And in the previous lecture, I told you about the periodization of the history, about the manufacturing, about the change, whatever we see in the world, and now we are going to know about the sources from where we got all the information of the history. So basically, in the modern period of India, in the modern history of India, the sources are from the two ways. First is your the administrative sources. From the help of the administrative sources, we got the information, and second one is about your the non administrative sources. So first of all, we go through the administrative sources. So look at the board that we are going to about the administrative sources. So in the administrative sources, the British maintain meticulous written records, their plans, policy, decisions, and the agreement. And these resources have been carefully preserved. So, these carefully preserved, the British also set up a record room which were a part of all administrative institution. For the administrative institution, for this the British make the National Archive and the National Museum. In 1891, March 1891, in Calcutta, British established a national archive in the name of the Imperial Record Department. Now, the one more thing is there that the practice of survey also become the important under the British, and they believe that if effective administration was only possible if the country has been comprehensively surveyed. By the early 19th century, are detailed about the revenue survey. This is all about the detailed revenue survey, about the botanical, geological, anthropological, archaeological surveys were carried out with the aim to gain the knowledge about the flora and fauna, about the topography, about the soil quality of our country. And for the end of the 19th century, the British starting the census survey. तो ब्रिटिश ने क्या किया था, सेंसस स्टार्ट कर दिया था in every 10 years. So it also gave a detailed records of the number of people in all provinces of India, about their religion, about their caste and the occupation. By this, the mapping, one more thing is there, the mapping was also an important part of these survey. The British had a number of maps made of the Indian subcontinents. For this, British has set up the Survey of India in Dehradun. देखिए मैपिंग के लिए ब्रिटिशर्स ने they set up the Survey of India in Dehradun. So these are the administrative sources of the from the Britishers, which we know about the India's very well. उस टाइम की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे, तो जो दो एक मैपिंग थे जो मैप बनाते थे, द सर जॉर्ज एवरेस्ट और सेकंड वन इज योर विलियम लैम्पटन, वो सर्वे करते थे इंडिया का, एंड दे क्रिएट द इलोबरेटेड सर्वे मैप्स एंड टोपोग्राफिकल शीट्स अबाउट द इंडिया. तो ये जो है आपकी, दीज आर द सोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस. अब देखिए हम लोगों ने जो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इसमें आपका फुल डिटेल में है सारी चीज़ें, इसमें आपको बुक भी ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मेनटेन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सोर्सेस होते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंडिया के ऊपर रूल ओवर करने के लिए या अच्छे से इंडिया को समझने के लिए उन्हें रिकॉर्ड्स को रखना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे वहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे. उन्होंने एक आपका इंडियन सर्वे म्यूजियम भी सेटअप कर दिया था, नेशनल आर्शीव्स को भी ड्रॉप कर दिया था कैलकाटा में इन द नेम ऑफ इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जो कि आपका 1891 में इस्टेब्लिश हुआ था. और ब्रिटिशर्स को लगता था कि नहीं, हम लोगों को सर्वे भी करना चाहिए, दैट फॉर रूलिंग ओवर एन कंट्री
वी हैव टू नो अबाउट द, हम लोगों को उनके लोगों के बारे में जानने की ज़रूरत है, उनके धर्म के बारे में, इवन उनके रिलीजन के बारे में, इवन वो किस तरीके के काम करते हैं, क्या पॉपुलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी ब्रिटिशर्स को, ताकि वो इंडिया को ज़्यादा और अच्छे से क्लैरिफाई करके रखें। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सर्वेस को भी सेटअप किया था। उन्होंने बेसिकली स्टडी भी कराई, एथोलॉजी, जियोलॉजिकल, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आए थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लोगों को एक रिकॉर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के थ्रू से मिलता है। उसके बाद मैपिंग का भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, उसमें जो 2 नेम है इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सर जॉर्ज एवरेस्ट है, और जो सेकंड वन है दैट इज़ योर मिस्टर लैम्पटन। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है जोग्राफिकल मैप्स को इलोबरेट करके शो किया था। उनके यहाँ न्यूमरस बहुत ज़्यादा मैप्स थे जो कि इंडिया की टोपोग्राफी, इवन द मैप ऑफ इंडिया को उन्होंने डिज़ाइन किया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज की तरफ। So now we going to discuss about the non-administrative sources। तो यानी कि वो सोर्सेज जो कि सरकारी नहीं होते थे, उनकी 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 वजह से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, दैट द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज which is also give them accounts of the India, such as we can study the diaries, accounts, autography books। तो ये जो चीज़ें होती थी है ना, ऑफ द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड अदर पीपल, जैसे कि गांधी जी हो गए हमारे, भगत सिंह हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये अपनी डायरीज में डेली लिखते थे। आपके बड़े बड़े लीडर्स हो गए या फेमस पर्सनैलिटीज़ हो गई आपके, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ये लोग क्या करते थे, अपनी डायरीज, अपनी बुकलेट्स या अपने एक्सपीरियंस को लिखते थे। लेटर्स जो होते थे उनके, जो आज भी हम लोगों को म्यूजियम में रखे मिल जाते, तो उनके थ्रू हम लोगों को उस टाइम पीरियड की नॉलेज हो जाती थी। जो हमारा जो सेकंड थिंग है वो है हमारा न्यूज़पेपर एंड लेटर्स। देखिए पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उस टाइम पे न्यूज़पेपर ऑल्सो गिव्स सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज अवर लिटरेचर, leaders and reformers, these were spreading the ideas, and the poets and the novelists expressing their views। तो उस टाइम पे जो भी लीडर्स होते थे, फेमस पर्सनैलिटीज़ होती थी, वो लिटरेचर के थ्रू भी वहाँ की उस टाइम की हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे इसी में। अब कुछ ओरल सोर्सेज भी, ये तो हो गया रिटन रिकॉर्ड की जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी। अब कुछ ओरल स्टोरीज भी होती थी जो कि हम लोगों को ज़्यादातर सुनने में मिलती हैं आपके इनके थ्रू, जैसे कि जो पीजेंट्स होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, ये लोग भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि गांव में जाते हैं तो हमारे जो दादा दादी होते हैं पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो क्या होती हैं, ओरल रिसोर्सेज होते हैं। तो उसमें ओरल रिसोर्सेज में जैसे कि फोक सॉन्ग्स हो गए आपके, फोक स्टोरीज हो गई आपकी, पैट्रोटिक या बैलेट्स हो गए आपके, इन सब के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि किसी वीर की बात होती हो, यानी कि कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, अपने टाइम पीरियड में रही होगी, तो उसकी स्टोरी, किससे कहानियाँ आपके गांव में चलते होंगे, लेकिन उसका रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो ओरली सुनाई जाती है। तो ये भी एक सोर्स हो गया हम लोगों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। उसके बाद आते हैं और भी बहुत सारे, जो कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ऐसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ हैं जिनको मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कि जो बहुत सारे अदर्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात हो रही है इसमें दादा भाई नौरोजी। तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द दादा भाई नौरोजी। ही रोट अ बुक पॉवर्टी एंड British rule in India, which is telling about the drain of wealth from India। यानी कि इनकी ये जो नॉवेल है, ये जो बुक है, ये इस चीज़ को बयान कर रही है, जो इन्होंने लिखी है, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का पूरा ड्रेन जो है, जो भी वेल्थ है, वो यहाँ से अपने देश में ले भेज दिया है। इसी के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी जो बुक है वो है आपकी आनंद मठ। एंड ऐसे ही एक और है हमारे दादा दीन बंधु जी, उन्होंने नील दर्पण लिखी है। तो ये क्या है, ये उन चीज़ों को शो कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में जो एक्सप्लॉयटेशन होता था पीजेंट्स के साथ, स्पेशली अबाउट द नील दर्पण। तो जो प्रेशराइज किया था ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पीरियड में इंडिया के पीजेंट्स को, नहीं यू हैव टू ग्रो द ओपियम। तो
उससे उससे रिलेटेड अब किसान मजबूरी में गेहूं या कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता था क्रॉप का, सिवाय आपके ओपीएम के यानी कि अफीम की खेती पे ऊपर, अफीम की खेती हो गई, आपका इंडिगो हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेशराइज किया गया था बिहार के जो भी पीजेंट्स थे कि आपको यही ग्रो करना है। क्योंकि उस टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी ब्रिटिश में बूम पीरियड में थी, और उन्हें कपड़ों की चमक को बरकरार रखने के लिए, शाइन को बरकरार रखने के लिए इंडिगो की ज़रूरत होती थी, और इसलिए वो इंडिगो का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाते थे। और ओपीएम का इसलिए करवाते थे कि जो इंडिया की जो लेबर होती थी वो चीप लेबर होती थी, और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए वो क्या करते थे, उनकी एडिक्टेड कराते थे। एडिक्टेड मतलब उसे नशे की लत लगवा देते थे इंडियन वर्कर्स के ऊपर, तो उन्हें बहुत कम दाम में यानी कि उन्हें बहुत कम पैसे में या सिर्फ नशे के लिए वो काम करते थे, तो उनका जो होता था वर्क टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता था, आदमी खुशी खुशी काम भी करता। तो ये सारे जो एक्सप्लॉयटेशन होते थे इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो उसके लिए ये रिसोर्सेज हम लोगों को मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जैसे कि आपके महात्मा गांधी जी के बारे में, और अभी टॉक अबाउट द जवाहरलाल नेहरू, दे आल्सो प्रोवाइडिंग द सोर्सेज लाइक एज Jawaharlal Nehru wrote a book that the discovery of India, and in this it is given a brief account about the India's history, about the philosophy and the culture. Like as the Hind Swaraj has been written by the Gandhi ji, and it's talk about the self rule, अपनी आज़ादी के बारे में बात करता है। और बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हो गए हम लोग के, देयर आर द लॉट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक एज राजा राम मोहन राय और बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, इन लोगों ने भी, ई स्वामी नायकर, इन लोगों ने भी बहुत सारी बुक्स को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। और इन्होंने अगेंस्ट किसके लिखा है कि उस टाइम पे जो कास्ट रिफॉर्म चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था शेड्यूल कास्ट पीपल्स का, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक बुक लिखी। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं ये क्या है, ऑल दीज आर द सोर्सेस, non-administrative sources. So this was whole about your chapter. By this is the end of your chapter. आपके चैप्टर में जितना टोटल था I have already described, and this is the end of the video. And do one thing, for very soon I am going to upload a second next video for the next chapter. So for that further notification you have to subscribe the channel, and mention the comments also that I also got the information what actual you are getting, आप लोगों को एक्चुअल में क्या मिल रहा है और आप लोगों को और क्या चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं इसमें डाल सकूँ। तो ज़रूर आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसकी फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो नोटिफिकेशन से आपको टाइमली वीडियो देखने का मौका भी मिल जाएगा। जब भाई आप वीडियो देखो कैसे, जब आपको नोटिफिकेशन हो, तो नोटिफिकेशन जब तब तक नहीं होगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। एंड सेकंड, कमेंट ज़रूर मेंशन करिए, और उस कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको एक्चुअल में और क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, उसको मैं फिर से ट्राई करूँगा आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। तो आपको ये काम पहले ज़रूर करना है सब्सक्राइब का, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे आके हम लोग बात करते हैं।